अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, इवेंट प्लानिंग तो बहुत ईजी है, कोई भी कर लेगा। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Today's video is actually very interesting. वैसे तो आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो इवेंट प्लानर्स की स्किल सेट के बारे में है, बट हमने थोड़ा इसे ट्विस्ट दिया है। We'll tell you about all of the qualities an event planner should have, and अगर आपको लगता है कि आप में इनमें से कोई क्वालिटी है तो give yourself a perfect 10. When you have watched the entire video, share your total score with us. सबसे पहले तो as an event planner you should have good communication skills. मीटिंग्स में और उसके बाद भी क्लाइंट्स आपके साथ अपने आइडिया शेयर करेंगे। They will tell you what they are looking for and how they want the entire event to be organized. इसे समझाने के लिए और क्लाइंट को अपना विजन क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए you will need to have good communication skills. I'm not saying you need to be an orator, but this role will need some sales and some counseling experience too, so that you express yourself clearly. Only then you will be able to deliver what the client wants. अगर आप क्लाइंट के साथ ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो how will you be able to create an event according to their needs and demands? You also need communication skills to clearly communicate with your teams and the vendors. Now if you think you have this quality, then give yourself a perfect 10. The next quality every event planner should have is problem solving. Might sound very geeky, but don't worry, it doesn't mean any maths or any accounting or any scientific formulas. जब आप एक इवेंट प्लान करते हो तो हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, सडन चेंजेस भी आते हैं और गूफर्स भी होते हैं। ऐसे में आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में जाना चाहिए बिकॉज योर क्लाइंट इज डिपेंडिंग ऑन यू टू हैव अ सीमलेस इवेंट. You should look for solutions which are practical and don't impact the budget of the client too much. You should also be able to find a solution quickly because event planning में एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको लगता है कि आप में स्किल है तो 10 पॉइंट्स और ऐड कर दीजिए अपने स्कोर में. इवेंट प्लानिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. यू विल नीड टू हैव अ टीम ऑफ पीपल टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द एंटायर इवेंट. इसलिए आप में थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए. You should be able to lead the team to give their best while planning it during the event. You should know how to delegate tasks to your team, how to motivate them, how to coordinate with them, and how to move forward taking the whole team with you. टीम से काम कैसे करवाना ये तो एक आर्ट होती है. If you think you know this art, then you should add 10 more points to your score. Now, the life of an event planner is very different from people in regular jobs. There are no fixed working hours or days. जिस दिन client available होता है वही आपका वर्किंग डे है. समटाइम्स यू विल नॉट इवन हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ वर्किंग. कभी साइट से काम करना पड़ेगा तो कभी किसी कैफे से. इसलिए इवेंट प्लानर्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए. दे शुड बी एबल टू वर्क ऑन संडेज इफ रिक्वायर्ड एंड फ्रॉम एनीवेयर एल्स टू. फ्लेक्सिबिलिटी आइडियाज में भी होनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर पीपल टू. अगर आपको लगता है आप भी इतने फ्लेक्सिबल हैं तो ऐड 10 मोर पॉइंट्स टू योर स्कोर. नेगोशिएशंस के बिना इवेंट प्लानिंग इनकम्प्लीट लगती है. इवेंट प्लानर हैज टू नेगोशिएट फॉर डील्स एंड डिस्काउंट्स विद मेनी पीपल. कभी वेन्यू के साथ, कभी केटरिंग के साथ, कभी अपने वेंडर्स के साथ, तो कभी क्लाइंट के साथ. जितना एक इवेंट प्लानर को नेगोशिएट करना पड़ता है उतना शायद ही किसी को करना पड़ता होगा. दिस इज वाई इफ यू आर एन इवेंट प्लानर देन यू नीड टू हैव नेगोशिएशन स्किल्स. दिस इज हेल्पफुल टू गेट द बेस्ट थिंग्स फॉर योर क्लाइंट विद इन देयर बजट. और जब पैसा सेव होता है किसको अच्छा नहीं लगता. If you think you have the ability to negotiate for discounts and deals, then add 10 more points to your score. There are some other skills and qualities too which every event planner should have, like calmness, presence of mind, creativity, quick thinking, the ability to multitask, etc. All these qualities are very important because event planning could bring a lot of stress as a profession. हर इवेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. कभी साउंड सिस्टम ठीक नहीं चलता तो कभी केटर टाइम पे नहीं आता. ऐसे में इवेंट प्लानर्स को काम रहना बहुत ज़रूरी है. दे ऑल्सो नीड टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्विक थिंकिंग टू बी एबल टू फाइंड सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स एज फास्ट एज दे कैन. अगर आपके पास ये 3 क्वालिटीज हैं तो ऐड अ बोनस ऑफ 30 पॉइंट्स टू योर स्कोर. क्रिएटिविटी एंड मल्टीटास्किंग के बिना तो इवेंट प्लानिंग करना पॉसिबल ही नहीं है. टू मेक श्योर दिस हैपन, you have to think of creative ways to provide regular services like unique catering ideas or out of the box decor. Multitasking भी important है because you have to deal with multiple people at the same time. आप डेकोरेटर से बात कर ही रहे होंगे कि फोटोग्राफर आपको कोड भेजकर रिस्पॉन्स मांगेगा. इसके बीच में क्लाइंट और वेन्यू के बीच में भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा. देखा जाए तो इवेंट प्लानर्स एंड सुपर हीरोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू मल्टीटास्क while being creative, so give another 20 bonus points to yourself. Now count your score, and if it comes to 100 then you are an ideal event planner. If it comes to 50 then you are good, but there is room for improvement. But if it is below 50 then you need to really work on your skills. Event planner होना easy नहीं होता. Most people have only half the qualities of being an event planner. But all these qualities and skills can be learned if a person really tries. Most of us learn on the job while we make our own mistakes. इसलिए स्कोर से डीमोटिवेट नहीं होना. इंस्टेड यूज इट टू वर्क ऑन वेयर यू फील यू नीड टू. वी होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट.
अपने स्कोर्स और अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल.